Today we're going to discuss the chromatography. It is a separation technique. Right, so it is used to separate the mixtures, the soluble mixtures mostly. Okay. For example, there are two techniques for this. ये खुद देखा करें प्लीज, कल उसको बताया था. Okay, it is a separation technique. It is used to separate the soluble mixtures, right? और इसकी दो टेक्निक्स होती हैं. There are two techniques or two principles, I must say. Right? There are two techniques or two principles to follow. क्या है वो principles? Look, number one, known as adsorption chromatography. And number two is partition chromatography. Now, let me explain these two principles, right? These are the principles, okay? What is the meaning of adsorption chromatography? Let's say, now listen to me carefully. This is a kind of understanding now. Listen to me carefully. If you look for these, let's say I have a mixture. Just for the sake of argument, I'm saying I have a mixture of sand and dust. I have a mixture of sand and dust. So mixture to ho gaya sand and dust. On this floor where we are sitting, and we want to get it separated. Every chromatography has two phases. Chromatography में क्या होती हैं? दो phases होती हैं. One is mobile phase and one is stationary phase. Mobile mean moving. Stationary means stationary. I mean static. Now let's say I take a mobile phase water. Mixture क्या हो गया हमारा? Sand and dust on this floor. I take a mobile phase water. मैंने पानी लिया और उसको इधर से फ्लो करना शुरू कर दिया, बहाना शुरू कर दिया.
Now, when the water moves from this corner of the room to that corner, on the top of what? On the top of floor. So, floor is the stationary phase. Floor क्या हो गया? Stationary phase. Water is the mobile phase. अब जो मिक्सचर है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन सा? सैंड एंड डस्ट. अब आपको पता है डस्ट वाटर सॉल्युबल है. डस्ट क्या है और सैंड क्या है? So as the water moves from this corner of the room to that corner, वो डस्ट को अपने अंदर क्या करता जाएगा? डिसॉल्व. ऐसे ही है. और जब वाटर वहां पहुंच जाएगा तो डस्ट उसके साथ डिसॉल्व होकर आगे चली जाएगी. फ्रॉम दिस कॉर्नर टू लेट्स से दिस कॉर्नर. सो यहां पे जब वाटर आया, all the dust is with water. But sand, you all know sand is water insoluble. ना सिर्फ water insoluble and stays behind, rather क्या होता है? वो जो पीछे रह जाती है तो वो ना सिर्फ वाटर इनसॉल्युबल थी बल्कि स्टक हो गई थी बिटवीन द टाइल्स. बिटवीन द टाइल्स सैंड जो है फंस गई ना टाइल्स के बीच में. इसको कहते हैं एड्सॉर्ब हो जाना. नॉट गोइंग इनसाइड द फ्लोर बट जस्ट स्टक ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर. इसे क्या बोलते हैं? एड्सॉर्ब. राइट. सो जब हम पानी हमारा वहां पहुंच गया, हमने देखा बोथ कंपोनेंट्स आर नाउ सेपरेटेड. दिस टेक्निक इज नोन एज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. क्या नाम है इसका? सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन ऑल दिस? क्या हुआ? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. What happened in all this? That the mobile phase water moved. One of the component of the mixture dissolved in it and moved ahead. The other component that was stuck behind, absorbed in the stationary phase, got separated. These two components got separated because of this thing. And this is known as adsorption chromatography. So please लिखिए what I'm trying to say. Adsorption chromatography क्या कहती है? When the components of the mixture, when components of a mixture separate by distributing in mobile and stationary phase. Adsorption. So component of the mixture separate by distributing in mobile and stationary phase on the basis of solubility in the mobile phase and adsorption in the stationary phase. The one that dissolves in mobile phase moves forward and the one that adsorbs in the stationary phase stays behind.
this way they are separated. हरीज समझ आई है क्या कहा है मैंने? ये ऐसे ही है कि आप में से दो बच्चों को मैंने अलग करना है, एक गाड़ी बुलाई, एक को बिठाया, उस पर भिजा दिया, दूसरे को इधर ही रोक लिया। तो वन मूव्स विद द कार, मोबाइल फेस के साथ जो गया वो आगे चला गया, जो स्टेशनरी फेस के साथ गया वो पीछे रह गया। ओके, are you done? This is called adsorption. The examples are, please write down the examples are thin layer chromatography. Okay, the next one. Now let me explain the other one. Now pay attention. For example, please write the other one is partition chromatography. First, let me write, फिर मैं explain करता हूँ. This one. First, can you please write in partition chromatography? Component of the mixture stayed behind. Done? Okay, now let me explain it to you. For example, let's say, अगर मुझे I have a mixture of, the example is paper chromatography and gas liquid chromatography, sorry. And one more, gas liquid chromatography. Gas liquid chromatography. Now,
Aris, if I give you an example, can you just tell me in this? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो मिक्सचर है, look at this. Now I have a mixture, iodine, please write down, and salt. Okay. Now my mobile phase is petrol and my stationary phase is not fluid. Water on the surface of fluid. मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ इसी फ्लोर पे अगर हम पानी खड़ा कर लें, 1-1 इंच यहाँ पानी खड़ा कर लें वैसे, और जैसे बंद कर दें इसका ड्रेन और यहाँ पानी खड़ा हो जाए, नाउ और मिक्सचर इज इनसाइड दिस वाटर. मिक्सचर क्या है? इस पानी के अंदर. Now we have to, and the mixture is what? The mixture is, yes, iodine and salt. तो क्या करना होगा बताएं? सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, सॉल्ट और आयोडीन दोनों पानी के अंदर डिसॉल्व हुए हुए हैं. क्या करना होगा? अगर हम पेट्रोल को फ्लो करें, पेट्रोल पानी से मिक्स तो नहीं होता ना, और पेट्रोल अगर एक रूम के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाएगा तो क्या होगा बताएं? पेट्रोल आगे आगे मूव कर रहा है. आयोडीन, बाय द वे मैं आपको बता दूं, आयोडीन जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है उसमें, पेट्रोल के अंदर. तो जो पानी के अंदर से आयोडीन है वो निकल के किसके साथ चला जाएगा? पेट्रोल के साथ. और जो सॉल्ट है वो बिल्कुल इनसॉल्युबल है पानी पेट्रोल में, और किस में सॉल्युबल है? वाटर में. तो वो क्या कहेगा? वो कहाँ रह जाएगा? वाटर के साथ. तो इन दिस वे आर दे सेपरेटेड. जब पेट्रोल आपका उस कॉर्नर पे पहुंचेगा तो सारा आयोडीन उसके अंदर होगा, और सॉल्ट किस में रह जाएगा? वेयर द सॉल्ट विल बी लेफ्ट इन द वाटर. ऐसे ही है. तो कैसे फिर सेपरेट होगा? और ये क्या, इसकी टेक्निक क्या है? इसे पार्टीशन कहते हैं. क्यों इसको पार्टीशन कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो आगे गया वो भी कैसे गया? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके. जो पीछे रहा वो भी कैसे रहा? क्या वो सरफेस के ऊपर स्टक होके पीछे रहा या क्या हुआ? वो भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व. तो जब कोई कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जो आगे जा रहा है वो भी डिसॉल्व होके आगे जाए, और जो पीछे रह रहा है वो भी डिसॉल्व होके पीछे रहे, तो आप उसे क्या कहते हैं? दिस क्रोमेटोग्राफी इज नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. डू यू गेट माय पॉइंट? सो दिस इज नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. इज इट क्लियर? जब, यही मैं बताने लगा हूं. अब जब आपका जो स्टेशनरी फेज है वो अगर सॉलिड है, वो क्या है? तो जो पीछे रहेगा वो उसमें एब्जॉर्ब होके पीछे रहेगा. और जब मोबाइल फेज आपका लिक्विड है तो जो आगे जाएगा वो डिसॉल्व होके आगे जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन हो गई. लेकिन जब मोबाइल फेज भी लिक्विड होगा, स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होगा, आगे जाने वाला भी डिसॉल्व होके गया, पीछे रहने वाला भी डिसॉल्व होके रहा, तो इसे पार्टीशन कहते हैं. बात समझ आ गई? दैट इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. इज इट क्लियर? कि इट इज बेस्ड कि किस पे वो अलग होगा. आर यू देयर? आर यू क्लियर नाउ? सो अब अगर आप, ये दो प्रिंसिपल हैं, अब हमें बारी बारी देखते हैं कौन सी फॉलो करती है. पहला है, लेट्स से, पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूं, अब ये वैसे सिलेबस में नहीं है, बट एग्जांपल समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूं, बिकॉज यू ऑलरेडी लर्नड इट. पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपको पता है इसमें एक पीस ऑफ पेपर होता है इस तरह का,
ऐसे ही होता है। जिस पे आप एक लाइन लगाते हैं यहाँ, जिसे बेस लाइन बोलते हैं, जो मिक्सचर है उसको यहाँ लगा देते हैं इधर, इसको एक सॉल्वेंट में रखते हैं, रखते थे, लेकिन सॉल्वेंट का लेवल जो है वो मिक्सचर के लेवल से, लाइन से नीचे होना चाहिए। उसके बाद ये सॉल्वेंट ऊपर को राइज करता है। मिक्सचर के अंदर लेट से 3 कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी। ए सॉल्वेंट के अंदर फुली सॉल्युबल है, तो जब सॉल्वेंट इस लेवल पे पहुंचेगा तो ए उसके साथ कहां पहुंच जाएगा? यस, अगर आप देखें तो आप कहते हैं जी जब ये यहां पहुंचेगा तो ए बी इधर होगा। सी दूसरा आइसोमेरिज्म। सी बिल्कुल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो सी कहाँ रहेगा पीछे? बी मिडल में था, वो यहाँ आ गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। द वन हु इज soluble in the mobile phase went ahead. The one who was interacting with the stationary phase stayed behind. स्टेशनरी फेज आपको लग रहा है पेपर है, पेपर नहीं है। पेपर के अंदर वाटर पार्टिकल्स है। आपको पता है हर पेपर सेलुलोज का बना होता है, उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स हर पेपर में होते हैं। तो आप कहते हैं दैट इज द स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज भी एक लिक्विड हो गई, मोबाइल फेज भी एक लिक्विड हो गई, यानी मोबाइल फेज ये हो गई आप। स्टेशनरी फेज क्या हो गई आप? वाटर पार्टिकल्स इनसाइड, वो भी क्या हो गई? लिक्विड हो गई। तो कौन सी टेक्निक होगी फिर, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन? यस, तो आप कहते हैं इट फॉलोज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सर उसमें पार्टीशन और एब्जॉर्प्शन में हमने मिक्सचर को नहीं देखना होगा ना, स्टेशनरी फेज को देखना। नाउ लुक एट दिस। अब अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट। तो अगर इनको डिवाइड कर दें तो आपको याद है एक चीज आती थी जिसे क्या कहते थे? रिटेंशन फैक्टर। आर एफ वैल्यू फॉर ए क्या होगी? लेट्स से 9/10 है, तो कितना हो गया? 0.90। आर एफ ऑफ बी क्या हो गया? व्हाट इज आर एफ ऑफ बी? लेट्स से या 6/10 है। और आर एफ ऑफ सी क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, 0.5। अगर यहाँ होता स्पॉट इस जगह तो फिर क्या होती आर एफ वैल्यू? और अगर यहाँ होता तो फिर क्या होती? 1। तो मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। बट एज आई सेड अब उस तरह नहीं है ये हमारे सिलेबस में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो मोबाइल फेज थी ना वो तो सही है, स्टेशनरी फेज वाज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो पेपर है इसमें आपने वाटर पार्टिकल तो सस्पेंड नहीं किए ना, पेपर के किसी हिस्से में ज्यादा थे, किसी हिस्से में कम थे, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। देन वी हैव टू रिप्लेस दिस पेपर। तो हमने बाकी सब कुछ सेम रखा, एक स्लाइड सा चेंज किया, और एक नई टेक्निक बन गई। अब ये हमारे सिलेबस में है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हमने क्या किया? वी टुक अ वेरी थिन लेयर, द सेम जिस तरह का पेपर होता है ना उसी साइज का, अ वेरी थिन लेयर ऑफ, a very thin layer of plastic coated with uh, no, a sheet of plastic, not a thin layer of plastic, a sheet of plastic coated with Al2O3 and silicon dioxide.
a very thin uniform layer. This is now our stationary phase acting as stationary phase. Now what I'm trying to say कि let's say मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मिसाल ले लेता हूँ. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज काइंड ऑफ सैंड. क्या है ये? सैंड है. तो आई टुक अ वेरी crushed sand, dissolved it or mixed it with let's say, turpentine, put it in a spray paint box, and uniformly sprayed it on a plastic sheet of the same size, just like a paper. उतनी thin. और उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दिया. As it gets dry, तो क्या होता है? All the solvent goes away. जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो स्टिक हो जाएगा उस पेपर पे. सॉल्वेंट तो ड्राई, जैसे पेंट में करते हैं. पेंट में भी हम यही करते हैं ना. पेंट आपको पता है कोई और चीज है, उसको एक लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ होता है. जब हम पेंट लगाते हैं तो लिक्विड क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है. तो पेंट के सॉलिड पार्टिकल्स दीवार पे स्टिक हो जाते हैं. सेम थिंग वी डिड हियर. वी स्प्रे पेंट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड thin layer on the plastic sheet. Rest everything is the same. You have to put a baseline. You have to put a solvent. So उसके स्टक जो है वो सैंड होती है. वही जो सैंड या वो है होगी. That'll be the absorb नहीं कहता, उसके ऊपर स्टिक हो जाती है ना, जैसे पेंट करते हैं आप. पेंट किया हुआ है तो ये सॉल्वेंट इसी तरह जिस तरह पेपर पे चढ़ता है. वो तो आपको पता है कैपिलरी रिएक्शन होता है ना. जैसे दीवार भी गीली हो जाती है, आपको पता है. वाटर जब मॉइस्चर आ जाता है तो पूरी दीवार के ऊपर चढ़ जाता है. सो इट्स जस्ट कैपिलरी एक्शन इसको बोलते हैं कि ये सॉल्वेंट ऊपर 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 को राइज करता जाएगा. बाकी सब कुछ वही है. ये मिक्सचर लगा हुआ है, इसमें भी उसी तरह कितने स्पॉट्स आ जाएंगे? 3 स्पॉट्स आ जाएंगे. हर एक की हम आरएफ वैल्यू निकाल लेंगे. जो सॉल्वेंट में आगे जाएगा वो डिसॉल्व होगा, वो आगे चला जाएगा. जो स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? वो पीछे रह जाएगा. वो क्या हो जाएगा? पीछे रह जाएगा. ओके. अब जो आगे चला गया और जो पीछे रह गया, या जो स्टेशनरी फेज वो है ना इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब मुझे टेक्निक बताओ इसकी. पार्टीशन एडसॉर्प्शन है थिन लेयर की, टीएलसी. जो आगे गया वो डिसॉल्व होके गया. जो पीछे रहा सॉलिड है अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड. पेंट, ड्राइड पेंट है. एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. सो इसमें टेक्निक क्या है? एडसॉर्प्शन. अब इसमें कौन आगे जाता है, कौन पीछे रहता है? हाउ वी डिसाइडेड? दैट्स द लास्ट क्वेश्चन. हाउ वी डिसाइडेड कि कौन आगे गया और कौन पीछे रहा? ये कैसे डिसाइड होता है? वही ना. ऑन व्हाट बेसिस? दिस इज अ बेस नोन एज, एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक. क्या है? So if you have a polar solute and solvent is also polar, so they are going to go with that. And if you have a non-polar solute and non-polar solvent, they are going to go with that. यानी अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर, यानी मोबाइल फेज पोलर है तो स्टेशनरी फेज क्या होती है? नॉन पोलर. तो इस तरह जो साइल्यूट्स होते हैं जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, वो जो पोलर होते हैं वो पोलर के साथ, और जो नॉन पोलर होते हैं नॉन. ठीक है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे इस केस में आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों पोलर हैं. तो स्टेशनरी फेज आपकी क्या हो गई? पोलर हो गई. अब आप मोबाइल फेज इसके ऑपोजिट ले लेते हैं. मोबाइल फेज लेट्स से वी हैव यूज्ड क्या नाम है उसका? हेक्सेन, जो कि एक एल्केन है, नॉन पोलर है. तो अब हेक्सेन नॉन पोलर है, स्टेशनरी फेज पोलर है. तो जो भी इस मिक्सचर में पोलर पार्ट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो नॉन पोलर होंगे वो इसके साथ आगे चले जाएंगे. इन दिस वे दे आर सेपरेट. समझ आएगी बात? सो पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन थी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है. राइट. तीसरी टाइप है गैस लिक्विड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.
is polar, the polar will go up and one polar will remain on the. Say it again. Then the solvent is not, the solvent is polar. Okay. Then the polar molecule will go up and. Yes. Very right. If solvent is polar, so solute जो polar होगा वो उसके साथ चला जाए और दूसरा पीछे रह जाए. Right? Okay. We are gonna stop here because we have less time and gas chromatography takes more time, so we're gonna discuss in the next class. Right? Thank you.